Okay, so we discussed this slide yesterday, the log and anti-log amplifier, and I also discussed how where to make use of this log and anti-log amplifier. One application I discussed was the multiplier and the divider. For divider, all you would be required to do is to what? To in place of this summer, it would be good if you use the subtractor, give the two inputs, and from here, if you connect an anti-log amplifier, and then this output would be, let's say, some K3 times V1 by V2, right? So that's how we make use of the multiplier, the log and anti-log. Basically, what log amplifier does. So if there is this log amplifier, any input given, you know, what happens to this input? K times of natural log of Vi. So this output V naught will be actually the compressed. This will be nothing but compressed form of the input. जैसा कि आपको पता होगा, so that log of 10 is 1. मैं कॉमन लॉग की बात कर रहा हूँ, to the base 10 of course, right? Then log of 100 is 2. ठीक है, तो ये जो 10 था ये छोटा होके क्या हो गया? 1 हो गया. 100 छोटा होके क्या हो गया? कंप्रेशन हो रहा है, right? So basically what is happening that this figure on the left is getting compressed. This is the compressed form of. Is that okay? Yes, sir. So in some signal processing situations, if the signal is large, then pass it through the log module, compress it. उसके बाद जो भी इस पर सिग्नल प्रोसेसिंग करनी हो करो. All kinds of signal processing you can do. And after signal processing, what you can do? You can decompress. Decompress means take anti-log. So this is what is called decompression or expansion. Expanding. So compression and expansion, right? इन दोनों को मिला करके एक वर्ड बनाया गया है और वो बोलते हैं कंपैंडिंग. कंपैंडिंग, राइट? ये अंग्रेजी का वर्ड नहीं है. दिस इज यूज्ड ओनली इन एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग. So when you make use of log and anti-log, right, it is called companding, compression and expansion of the signal. Is that all right? Is it okay? Yes? Yes, sir. Listening? Is that okay? Yes, sir. ठीक है वैभव, thank you. So that was about the slide 8 which we handled yesterday, right? सर अगर सिग्नल प्रोसेसिंग Okay, में कुछ coming to slide. Yes, 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 बोलो. सर अगर सिग्नल प्रोसेसिंग में कुछ ऐड हो रहा हो फिर तो एंटी लॉग में काम ही नहीं करेगा फिर वो. Well, that is true. Actually आप यहाँ ये देख सकते हो कि सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो ऑफ कोर्स आई मीन ये बात सच है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जैसा कि आपने यहाँ देखा था अभी ये इसके पहले वाले पर,
नहीं, कहाँ गया? मे बी कैन गो टू स्लाइड 8 पे हमने कुछ लिखा था. वेल हियर, राइट? तो अगर वो ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे में it is very easy to find out. Oh God. One second. Okay, so अगर कोई ऐसा सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है लॉग लेने के बाद, जिससे कि बाद में एंटी लॉग विल बिकम अनरिलायबल, देन इट इज सर्टेनली टफ. इट इज सर्टेनली टफ टू यू नो बट अगर आप सिर्फ एक्सपेंशन और कंप्रेशन के पॉइंट ऑफ सोचो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट. It will be anyway the replica of the input signal. I hope this is agreeable. यस सर, अगर सिग्नल प्रोसेसिंग में What you मल्टीप्लिकेशन will right, यहाँ पर जो भी सिग्नल मिलेगा, that will be nothing but a replica of this signal. And all that is happening here, if that can be given a term like say k, so output will be nothing but k times of vi, because what is happening inside is happening with all signals, isn't it? So you can expect a bit of proportionality at the output. I hope this is quite convincing, right? Is that okay? Yes, sir. यस सर. Right. So that's the log anti-log amplifier. आप इसको और अच्छे से बुक से पढ़ लो और जितना मटेरियल आपको मिल सके. राइट, टीचर आपको कुछ चीजें बताता है, बहुत सारी चीजें आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी होती हैं. आई होप यू विल एग्री विद मी. जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपकी अपनी एक्सप्लोरेशन का कॉन्सिक्वेंस है. उसमें टीचर कैन बी वन सपोर्ट एलिमेंट. मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हैड इट बीन a normal kind of learning environment, then probably हमारा लैब में जाना और लैब में चीज़ों को करके देखना would have made it even more better professional things. But again, the facilitation in lab also plays a very, very important role, right? So for validation things, as I have told you already, you can make use of the simulators, and they are quite handy. घर पर भी available है, आपके लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप पे. So test all these circuits and simulating them on Spice. It hardly takes few minutes, not much. जितनी सर्किट मैंने पढ़ाई हैं उन सबको आप टेस्ट कर सकते हो, उनको वैलिडेट कर सकते हो. You can check that what is the log now, log of this. For instance, if I ask you that what will be the log of a sinusoid, आप इनपुट पे साइनोसॉइड दे दो. ठीक है, और फिर इसका लॉग देखने की कोशिश करो. क्या होगा इसका लॉग? पहली बात, ये यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए.
नेगेटिव का लॉग नहीं मिलता। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? Yes. तो आपको इसको ऑफसेट देना पड़ेगा, 0 यहां रखना पड़ेगा, and then this sinusoid can be given as input to the log amplifier. So when you give this signal as input to the log amplifier, तो कैसा होगा इसका आउटपुट? कंप्रेशन होगा इसका बुरी तरह से। I mean, compared to this part of the waveform, this part would be compressed more. ठीक है ना? आपको पता है log of 1 is log of 1 is 0, then log of 10 will be 1. Suppose this is 100 और यहाँ कहीं पर 10 हो, 10 20 ऐसे, तो 10 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 होगा, और 100 के करेस्पॉन्डिंग 2 होगा, और 10 के करेस्पॉन्डिंग 1 होगा। तो एक नॉन लीनियर आउटपुट बनेगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। दिस इज 1, इज दैट राइट? दैट्स द आउटपुट, ग्रीन 1 इज द आउटपुट, इसके करेस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। आउटपुट बना सकते हो। सो इट स्टार्ट्स हियर इट इज 0, ये कुछ इस तरह का बनेगा, पता नहीं ऐसा बनेगा, ठीक है ना? नहीं, या सॉरी, ऐसा भी नहीं बनेगा, नो नो नो, ऐसा नहीं बनेगा। लेट मी, तो ये जो है ब्लंट होता जाएगा ये, और बहुत फास्ट ब्लंट होगा। इस तरह से, इस तरह का बनेगा, जैसे किसी ने ऊपर से इसको ठोक करके और ब्लंट कर दिया। यहां पर बिल्कुल 0, और ये इस तरह से ऐसा बनेगा। log of this will be something like this. रैंप अगर हो तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आती है। रैंप का अगर लॉग निकाला जाए, सर माइनस में तो बनेगा ही नहीं। मैंने कहा ना इसमें डीसी ऑफसेट इतना दिया गया, ये इतना डीसी ऑफसेट है। ये सर, ओके सर। ये इतना डीसी ऑफसेट दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर रैंप हो तो इसका बहुत आसानी से आप समझ सकते हो व्हाट विल बी द लॉग। रैंप पॉजिटिव में है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कन्वर्ट कर देगा इसको साइन वेव में, देख रहे हो ना? ट्रायंगुलर वेव आफ्टर लॉग इट बिकम्स ऑलमोस्ट a sine wave. It becomes a almost a sine wave. ठीक है, so you have to go through some literature on through books and or maybe from some other sources, right?
All right, so let us move ahead to slide number 10. Slide number 10 is on the filters that we started in the beginning of this classes after the midterm test and after all those big gap. So low pass filter, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर की ये स्लाइड है. Okay, so there are as many as 3 types of first order low pass filters shown and 4 first order high pass, right? So in this low pass filter, first one as you can see, what you see here is the passive first order filter, of which transfer function is given by this. You agree with that? Is that okay? Yes, sir. And because this op-amp has been used as a buffer, which means unity gain amplifier. Buffer is also called unity gain amplifier. So any voltage that you have here is transferred to output by virtue of input being virtually short. So for this circuit, for the circuit of this first one, right, the VO by VI will be as given here. Correct? Now, why do we need buffer? Buffer हमने क्यों लगाया? Buffer लगाने की वजह ये है कि suppose if there's a circuit of low pass filter और इसका हमने निकाला है ट्रांसफर फंक्शन VO by VI, ठीक है. किस कंडीशन में निकाला है कि आउटपुट पे कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है. हम ऐसे तो करते हैं. While finding out VO by VI, which we have named as transfer function TS, what do we write? 1 over RC over S plus 1 over. And while finding out this, we have assumed that the current flowing through this is actually flowing through this, which is when we apply the potential divider and find out transfer function. Is that correct? यही तो है ना? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो हमने आउटपुट पे करंट को 0 माना है. बट एज सुन एज वी कनेक्ट ए रेसिस्टर, यहां पर जैसे ही हम एक रेसिस्टर लगा दें कोई दूसरा, अभी आउटपुट करंट 0 नहीं रह गई. सपोज दिस इज नाउ R1. Now this output current is not 0. Now there is some current flowing, and therefore transfer function will not be this. अब ट्रांसफर फंक्शन मॉडिफाई हो गया ना? अगर इसी को हम लोड लगा दें तो लोड लगाते, रेसिस्टिव लोड लगाते ही ट्रांसफर फंक्शन विल नॉट बी दिस. It will change because load is going to alter the effect of capacitor. लोड हो गया उससे, है ना? Yes, sir. तो लोडिंग ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? लोडिंग ना हो इसके लिए हम इस RL को तब लगाते हैं जब एक कोई बीच में बफर लगा दिया जाए. तो हमने यहाँ पर एक बफर लगाया और इस बफर की कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही वहां से. नाउ देयर इज नो करंट फ्लोइंग, और ये जो VO है ये VO यहां आ गया. इज दैट ओके? अब वही लोड जो हम यहां लगा रहे थे, द सेम लोड आई कैन कनेक्ट नाउ हियर without altering the transfer function. Now this transfer function is correct.
Now this is correct. Is that okay? Yes, sir. Yes. तो ये बफर बीच में लगाने का पर्पस ये है कि लोड जो है ट्रांसफर फंक्शन को ऑल्टर ना कर दे। इसलिए हम बीच में बफर लगा दिया। ठीक है ना? अब एक और आप चीज देखो। सपोज you have one first order low pass filter, ठीक है? Then you have another first order low pass filter, ठीक? This is now let us say R1 and C1. This is R2 and C2. इसका ट्रांसफर फंक्शन आप लिख दिया 1 over R1 C1 डिवाइड बाय S plus 1 over R1 C1. ये हो गया 1 over R2 C2 डिवाइड बाय S plus 1 over R2 C2. ठीक है? In short, आप quickly ये भी कह सकते हो, this is let us say A divide by S plus omega O1. This is B divide by S plus omega O2. अब इसका अगर हम if I cascade this and then I want to find out this VO by VI, then what will be VO by VI? बोलो। Will that be this into this? No, sir. No, because it is getting loaded. ये कब होगा this into this? जब बीच में बफर होगा। Exactly. अगर हम बीच में एक बफर लगा दें, beautiful. That means now you have understood the use of buffer. So this buffer, if I connect, right, and if I use it like this, now it will be this into this into this. बट सर हाँ, जब बफर लगाने से इनपुट वोल्टेज ऑल्टर नहीं होगा? कैसे ऑल्टर होगा? थोड़ा एम्पलीफायर तो नहीं हो जाएगा सर? ना, कैसे कैसे कैसे? S plus omega 1 into S plus omega 2. अब ये सेकेंड ऑर्डर फिल्टर बन गया ना? नीचे हो जाएगा S स्क्वायर प्लस S इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 A into B. It has become now second order filter. Is that right? Of course, अगर आपको आउटपुट लेना है तो फिर से यहां पर एक बफर लगाना पड़ेगा। अब यहां से आउटपुट ले सकते हैं हम। Is that right? Yes. Okay, now going back to the slide. तो ये लो पास 1 जो है ये उसी टाइप का है। लो पास 2 में आप देखिए, लो पास 2 हमने बनाया हुआ है, ये पैसिव फिल्टर है। दिस वन इज द लो पास फिल्टर। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा अगर आप वर्कआउट करो? तो दैट टर्न्स आउट टू बी दिस मच, 1 by R1 C2 डिवाइड बाई S प्लस R1 plus R2 डिवाइड बाई C2 R1 R2. Is that agreeable? मतलब इस जगह पे अगर हम कोई एक V O डैश मान लें तो VO डैश बाई VI, VO dash by VI will be actually this. आप कर लेना वर्कआउट, दिस नॉट अ टफ थिंग। कर लोगे? Yes, sir. ओके, सो दैट अब ये जो VO डैश है
ये VO dash I am giving as input to this thing, and this one is what? This circuit is a non-inverting amplifier. इसका gain क्या है? 1 plus R4 by R3 times V naught dash will be actually V naught. तो ये जो V naught है, that will be this much. यही हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया. This into this is now VO by VI. Is that okay? Yes, sir. तो अब इसमें इस ऑप एम्प को हमने बफर के बजाय अगर हमें लो पास फिल्टर का गेन बढ़ाना हो तो आई कैन make use of that, and with the help of this I can increase the gain. Gain enhancement can be done for gain enhancement. Is that fine? इससे और कोई काम नहीं हो रहा. It is only enhancing the gain. और आप इसमें एक बात नोट करो, जो ओमेगा नॉट है, दिस इज एक्चुअली ओमेगा नॉट. आप इसको कैसे लिखते हो? इसको ऐसे लिखते हो, ए नॉट डिवाइड बाय एस प्लस ओमेगा नॉट. ऐसे लिखते हैं ना लो पास फिल्टर को, फर्स्ट ऑर्डर. और एक हम ये फैक्टर आ रहा है यहां पर गेन वाला, लेटर से आई एम राइटिंग दिस एज एच नॉट. तो ओमेगा नॉट में जो गेन है, गेन में क्या क्या आ रहा है? गेन में आ रहा है R4, R3 और R1. ऑफ कोर्स C2 भी आ रहा है. C2 को हम कांस्टेंट रखते हैं. तो गेन को वेरी करने के लिए 3 रेसिस्टर्स हैं, R1, R4, R3. लेट अस कीप R1 आल्सो कांस्टेंट. सो गेन कैन बी वेरीड बाय R4 एंड R3. अब ओमेगा नॉट में क्या क्या आ रहा है? ओमेगा नॉट में आ रहा है R1, R2 एंड C2. R1, C2 हमने कांस्टेंट कर दिया. सो ओमेगा नॉट कैन बी वेरिड विद R2. गेन कैन बी वेरिड विद R4 एंड R3. इस पहले वाले लो पास फिल्टर में ऐसा कुछ नहीं था. यहां पर गेन भी कांस्टेंट था. गेन कितना था? यूनिटी. ओमेगा नॉट कितना था? 1 over RC. Only omega naught was variable with the help of R if you keep C constant. In the second configuration, however, gain can be varied with R4 and R3, and omega naught can be varied by R2. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Now look at this low pass 3, third circuit. आप देखो third circuit में, if you work out VO by VI, you get this. This we have already done, right? और इसमें बहुत साफ दिख रहा है that gain H naught will be how much? Minus R2 by R1. और अगर हम, और ओमेगा नॉट इज व्हाट? ओमेगा नॉट इज 1 over R2 C2. So here you can make again H naught variable with the help of R1 and omega naught also variable with the help of R2. लेकिन जैसे आप R2 चेंज करोगे, ये R2 यहां भी है, यहां भी है, तो ये चेंज होएगा. इसके चेंज होते ही गेन भी चेंज होगा. गेन को फिर से वापस वहीं लाने के लिए आपको R1 को प्ले करना पड़ेगा. तो इस तरह की जो कंट्रोल है फिल्टर में, फिल्टर पैरामीटर, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंट्रोल. कि पहले आप ओमेगा नॉट, फर्स्ट यू सेट ओमेगा नॉट, एंड बाय नोइंग R2 and C2, then you set the H naught. Is that correct? Polo, is that fine? Yes, sir. Now, first order high pass circuit. This first order high pass circuit, again, this is nothing but the passive RC circuit, और इसका ट्रांसफर फंक्शन ये रहा, और आगे बफर लगा दिया गया है. Nothing much to talk about.
हियर इंस्टेड ऑफ बफर हमने क्या किया है, गेन स्टेज लगा दिया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसका कि ये गेन हो गया। तो गेन इनटू दैट विल बी दी। एक थर्ड सर्किट है हाई पास फिल्टर की, आप देखिए, in which gain is minus C1 by C2, and that's the high pass filter transfer function, S by S plus omega naught. Omega naught is C2 R2. So you can vary omega naught with R2 and you can vary gain with C1. दोनों independently controlled हैं। यहाँ पर you can vary omega naught with R and gain can be varied with this. Is that correct? Omega naught and H naught. Because this is first order filter, so there is no possibility of the quality factor, right? Only two parameters are possible. Fourth high pass filter of first order. If you try to work out for this, the transfer function, it turns out to be this, where omega naught can be controlled by R1. R1 can be used to control omega naught, and once R1 is set for a particular omega naught, then R2 can be used to set the H naught, the gain. Again, this is orthogonal tonality, orthogonal tunability. You are tuning one parameter first and then you are setting the other parameter. Now coming to the second order filter, second order low pass filter, there are various filters. मैं आपको और बहुत सी बड़ी सी लिस्ट दे दूंगा, इसमें अभी स्लाइड में कुछ ही हैं। Salenki 1, Salenki filter, as you can see here, कैसे एनालाइज करोगे इसको, Salenki filter को? Is that correct? Oh, बफर लगा रखा है, not the हाँ बफर ही होगा, correct. So what you have here is buffer. और बफर है तो ये चेंज करना पड़ेगा. Right. Now this is R1, R2, C1, C2. I think I have marked it correct as. Okay. Now if you find out VO by VI, that turns out to be something like this. ठीक है? Can you work out this VO by VI? VI and V naught. ये दो नोड्स हैं, राइट? अगर ये V naught है तो वर्चुअल शॉर्ट की वजह से दिस पॉइंट विल आल्सो बी V naught. Is that okay? Yes, sir. Now let us assume this node to be at voltage V. ठीक है? अब ये बात भी ध्यान देने की है that this current is not flowing. High impedance. Assuming ideal op-amp, infinite gain, therefore virtual short. So because this current is not flowing, you can have relation between V and V naught.
isn't it? This current flows through this. So पहला इक्वेशन ये लिख सकते हो आप, that V minus V naught divided by R2 is equal to V naught times S C2. Is that fine? Is that okay? Yes, sir. So from here you can get V. V की वैल्यू निकाल सकते हो in terms of V naught. So V will be V naught times SC2 R2 plus 1 divided by R2. Is that fine? Yes, sir. सर डिवाइड बाय R2 नहीं आएगा ना? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ इज दैट ओके, तो बोल रहे हो हाँ ओके। तुरंत गलती पकड़ने की का तरीका ये होना चाहिए कि आप दोनों तरफ का डायमेंशन चेक करो। अब ये डायमेंशन ठीक है, राइट। सो v इज नाउ इक्वल टू v नॉट टाइम्स दिस। अब इस नोड पे भी आप KCL लिखो, so that will be Vi minus V divided by R1 plus V naught minus V times SC1 plus V naught minus V divided by R2 equals to 0. ठीक है? This is second equation. अब इस सेकंड में हमें Vi को अलग रखना है, Vi by R1, और V नॉट को हमें लिखना है V नॉट ठीक है, V नॉट टाइम्स SC1 प्लस 1 ओवर R2, और फिर V को अलग रखना है, सो माइनस V टाइम्स 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस SC1 इक्वल टू 0। अब ये इस V की जगह पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, and after substituting then you rearrange and find out V naught by Vi. So this V naught by Vi, if you work out, मैंने पूरा बता दिया आपको, is that okay? Is that fine? Tell me yes or no. Yes, sir. Now you have to find out VO by Vi, and that VO by Vi will be this. VO by Vi निकालने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है डिनोमिनेटर का? Standard form of denominator will be always something like this: s square plus something into s plus something. This something will be called omega naught by q naught. This something will be called omega naught square. और यहाँ न्यूमरेटर में कुछ आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो तीन तरह के ट्रांसफर फंक्शंस हैं सेकेंड ऑर्डर के। अगर ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन पहले लिखो, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन। सो बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन इज a2 s स्क्वायर a1 s a नॉट divided by s square omega naught by q naught s plus omega naught square। अगर इस ट्रांसफर फंक्शन से लो पास फिल्टर बनना है तो आई होप यू विल एग्री क्या क्या होगा। लो पास फिल्टर में सिर्फ इतना पार्ट होगा, ठीक है।
बोलो। यस सर। ओके, अगर इससे बैंड पास फिल्टर बनना है तो सिर्फ ये पार्ट होगा। इज इट ओके? यस सर। राइट। और हाई पास फिल्टर बनना है तो सिर्फ इतना होगा। ये भी ठीक है, ठीक है। यस सर। राइट। अब अगर मैं लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन लिखूं तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ए नॉट डिवाइड बाय एस स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई क्यू नॉट इंटू एस। अब इसके जो 3 पैरामीटर्स है वो क्या क्या होंगे? इस फिल्टर के 3 पैरामीटर क्या होगा? पहला होगा ओमेगा नॉट, जो जो कहां से दिख रहा है? जो यहां से मिल रहा है। दूसरा पैरामीटर क्या होगा? क्यू नॉट, जो कहां से मिल रहा है वो यहां से मिल जाएगा। अगर ओमेगा नॉट यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दें तो आई कैन फाइंड आउट क्यू नॉट हियर, करेक्ट। तीसरा पैरामीटर क्या होगा? गेन एच नॉट। एच नॉट 3 पैरामीटर होते हैं सेकेंड ऑर्डर में, ओमेगा नॉट, क्यू नॉट, एच नॉट। ऑफ कोर्स चौथा भी होता है जिसे बोलते हैं बैंडविड्थ, एंड बैंडविड्थ इज व्हाट? बैंडविड्थ इज नथिंग बट ओमेगा नॉट बाई क्यू नॉट। फोर्थ पैरामीटर इज द बैंडविड्थ। इज इट ओके? यस सर। सर 1 2 3 और ये 4। हाँ बोलो। यस, 4 पैरामीटर होते हैं सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में। 3 निकल गए तो चौथा दिख रहा है साफ साफ कि निकल जाएगा, ठीक है। एच नॉट कैसे निकालते हैं? एच नॉट निकालने के लिए अगर लो पास फिल्टर का एच नॉट निकालना है तो आप इसमें देखो ध्यान से, हियर एस रेज पावर 0 है, यहां एस रेज पावर 1 है, ठीक है ना। यहां भी क्या है? यहां भी एस रेज पावर 0 है। इज दैट ओके? यस सर। तो अगर लो पास फिल्टर का गेन निकालना है, एच नॉट ऑफ लो पास फिल्टर, एच नॉट ऑफ low pass filter, then that will be the ratio of coefficient of s raised power 0 in numerator divided by coefficient of s raised power 0 in denominator. Is that fine? जो कोफिशिएंट है एस रेज़ पावर 0 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके रेशियो को बोलेंगे एच नॉट ऑफ लो पास फिल्टर। So third parameter will be a naught divided by ओमेगा नॉट स्क्वायर। ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर और भी कुछ यहां ट्रांसफर फंक्शन में है, सपोज यहां पर हमने एच लिखा हुआ है तो वो एच भी यहां पर आ जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, यस सर। ओके। अब अगर हम बैंड पास, इफ आई टॉक अबाउट द बैंड पास फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन, so that will be what? That will be a1s divided by s square plus omega naught by q naught into s। अब इसमें भी जो 3 पैरामीटर होंगे, पहला होगा ओमेगा नॉट जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में, दूसरा होगा क्यू नॉट वो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तीसरा होगा एच नॉट बैंड पास फिल्टर का, वो क्या होगा? मेरे ख्याल से आप गेस कर सकते हो। अब कोफिशिएंट ऑफ s raised power 1 in numerator divided by coefficient of s raised power 1 in denominator. Is that right? यस सर। And of course, this will be multiplied by the constant that you already have there. Is that okay? यस सर।
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन ए टू एस स्क्वायर इज इट ओके? इसमें भी 3 पैरामीटर ओमेगा नॉट और क्यू नॉट हमेशा कहां से मिलते हैं? हमेशा ये दोनों मिलते हैं डिनोमिनेटर से। हमेशा ये दोनों डिनोमिनेटर से मिलेंगे। और कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एच नॉट? HA2. HA2, perfect. HA2, coefficient of S square in numerator divided by coefficient of, because coefficient of S square in denominator is 1, therefore it is only HA2. So now you have understood how to find out the 3 filter parameters. ठीक है? अब अगर आपसे कोई कहे कि इस VO by VI में what is omega naught? This is omega naught square, isn't it? So omega naught will be 1 by under root C1 C2 R1 R2. नहीं? Yes, sir. And what will be the low pass filter gain? Unity. Unity. Perfect. Beautiful. Coefficient of S to the power 0 in numerator divided by coefficient of this. You can now find out the gain of the band pass filter. हालांकि बैंड पास फिल्टर इसमें नहीं बन रहा है, यहां पर सिर्फ लो पास फिल्टर बन रहा है. दिस सर्किट इज ओनली द सर्किट ऑफ द, इसका नाम है सैलन की लो पास फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर. तो गेन इसका 1 है. ठीक है, ओमेगा नॉट पता है. क्वालिटी फैक्टर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो. दिस इज ओमेगा नॉट बाई क्यू नॉट एंड ओमेगा नॉट पता है आपको. यू कैन फाइंड आउट क्यू नॉट. थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आप निकाल सकते हो. इस केस में कोई पूछे क्या है गेन लो पास फिल्टर का? One plus R4 by R3. वेरी गुड. 1 प्लस R4 बाई R3 इज द गेन. ठीक है. और इस कॉन्फ़िगरेशन सेलन की 2 में 1 में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ जो बफर लगा रखा है, बफर को इसने एक एम्पलीफायर से रिप्लेस कर दिया और उस एम्पलीफायर का गेन यहाँ दिख रहा है. नथिंग डिफरेंट. इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर. ओके. अब ये जो डेरिवेशन है मैंने आपको बता दिया है सेलन की फिल्टर का, बता दिया ना अभी करके. Yes, sir. राइट. ऐसे ही ये जो तीसरा फिल्टर है मल्टीपल फीडबैक, दिस वन. चौथा फिल्टर है मल्टीपल फीडबैक 2. पांचवा फिल्टर है फ्लीज फिल्टर. ये सारे सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर हैं. छठवां फिल्टर है बैक फिल्टर. ठीक है. इन सब का आप ऐसे ही हाई पास फिल्टर है, सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर, सैलन की 1, सैलन की 2. ऑब्वियसली अगर ये हाई पास फिल्टर है तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन हम कैसा कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? VO बाई VI किस तरह का होगा? कैन यू गेस? S square. S square plus this something into S and then there is this something. ठीक है. हो सकता है यहां भी कुछ आए, मुझे नहीं पता क्या आएगा. अगर नहीं आता है तो गेन इज यूनिटी. अगर आता है तो वो जो होगा वही गेन हो जाएगा हाई पास फिल्टर का. इज दैट राइट? Yes, sir. और यहां पर जो आएगा दैट विल बी ओमेगा नॉट स्क्वायर.
यहाँ जो होगा उसे हम बोलेंगे ओमेगा नॉट बाई क्यू नॉट। और अभी से एम्पलीफायर को एक यहाँ पर गेन स्टेज लगा दिया गया है, तो अब गेन यहाँ पर बढ़ जाएगा उसका। देन देर इज द मल्टीपल फीडबैक वन सैलन की हाई पास फिल्टर। इन सभी का आपको वीओ बाई वी आई निकालना है। 5, 6, ये कैचन फिल्टर मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, छठवें का छोड़ दो, 5वें तक निकालो। दिस आई विल डिस्कस कैचन फिल्टर। देन कम्स बैंड पास फिल्टर। Here, if you find out VO by VI, Delianis band pass filter, इसको मैं अलग से बना के दिखाऊंगा आपको। उल्टा बन गया, आरसी स्वैप हो गया लगता है। राइट। Sir, we have a class at 2. ओके, ठीक है, मैं यही रोकता हूँ फिर। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस, राइट।